وہ ہمارے منیس الرحمان کدوائی صاحب ہیں، ان کی تصویر اور کدوائی صاحب کی تصویر دیکھیں گے ایک ساتھ گیا تھا دونوں. میں تو شبہ ہوتا ہے کدوائی صاحب کی عمر میں کتنا فرق ہے کچھ نہیں کہا سکتا. تو میری درخواست پر تشریف ہے. یہ بہت کم میٹنگوں میں جاتے ہیں. ادیب بھائی سے تو واقف ہی ہیں. یہ پروفیسر ذکر الرحمان صاحب ہیں، فلسطین میں یہ سفیر بھی رہے ہیں. بہت کام عربی ڈاکٹر صاحب کی طرح عربی زبان میں بڑی روانی صاحب ہیں. یہ فیضی وزیر ہاشمی صاحب ہیں، دلی گورنمنٹ ایڈیشنل سیکریٹری رہے ہیں. یہ سب سے ضروری میں یہ بتانا چاہوں گا منیش صاحب کو کہ عرفی اور مصباح میرے دوست رہے ہیں. اچھا جی آپ کے عزیزوں میں سے ہاں دو نوجوان بھائی ایک کو بھی یاد ہے اب تک دیکھنا چاہ رہا تھا. اور یہ خواجہ محمد شاہد صاحب ہیں، تاریخی آدمی ہیں، یونیورسٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں. اور عبدالخالق انصاری صاحب ہیں. یہ دلی کی جو تہذیب مٹتی تہذیب کی علامت ہے. ایسے لوگ اور ان کے صاحبزادے ہیں. یہ سہیل انجم صاحب بہت خاکہ نگار ہیں، بہت زبردست لکھتے ہیں. یہ ہمارے دوست حامد خان صاحب ہیں، شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے بنیادی ممبروں میں ہیں. ایک صاحب پرانی دلی کو چلے گئے، شاہ فیصل وہ ہیں. یہ ہمارے شوکت صاحب ہیں، میرے عزیز ہیں. یہ آصف محمد علی صاحب ایڈیشنل پولیس کمشنر رہے ہیں دلی میں، آڑے وقت میں بہت کام آتے ہیں. ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب تو بہت ہی مشہور ہیں. اور ان حالات میں جو کہیں سے آواز اٹھتی تو وہاں سے یہاں سے باقی سناٹا ہے. اور یہ ہمارے ڈاکٹر سید فاروق صاحب ہیں، تو پوری ملت کی نمائندگی کرتے ہیں. اور یمین بھی بہت ہی اہم آدمی ہیں. تو خیر یہ کوئی تقریب نہیں ہے، یعنی کوئی جلسہ اور اجلاس اور کوئی بہت بڑا پروگرام نہیں ہے. یہ بہت بیمار رہتے ہیں، صرف میری درخواست پر تشریف لائے ہیں، سفر سے آئے ہی ہے. اور یہ تو نکلتے بھی نہیں ہیں. میں اس لیے آپ حضرات کو زحمت دی ہے کہ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے قیام کے ان سال 25 سال ہو جائیں گے. اور میں مہندیان جہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مدفون ہے، وہاں میں مدرس تقریباً 14-15 سال. اور شاہ صاحب کا مزار اور میرا کمرہ سامنے تھا، اترتے ہوئے شاہ صاحب کے پر میرا. ان کے جوار میں تقریباً 14 سال میں نے پڑھایا ہے. حجت اللہ البلا وہی پڑھانے کا موقع ملا. 14 سال جب میں پڑھا لیا تو مفتی کفایت اللہ صاحب کے نواسے تھے مفتی جمیل الرحمان، وہ مدرسہ امینیہ کے محتمم تھے، آپ واقف ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں کیا بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہاں ایک ٹیم بنانے جا رہا ہوں امینیہ میں، آپ وہاں آ جائیں. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ 12 سال کے بعد درس و تدریس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور میں تقریباً اسی کے قریب میں پہنچ رہا ہوں، اس لیے اب میرا رجحان نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں. خیر میں چلا گیا جہاں انور شاہ کشمیری نے پڑھایا ہے، مدرسہ مینجن، آپ تو واقف ہیں ذکر الرحمان کا. تقریباً 20 سال پڑھایا. جب میں دلی میں آیا تھا تو 81-82 میں، 84 کی بات ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب آئے تھے ہندوستان. وہ مہندیان اور اس میں آنا جانا ان کا تھا. اس وقت سے ان کی شناسائی تھی ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب. جب میں ابوالفضل چلا گیا تو اس وقت میرا کوئی جاننے والا نہیں سوائے ڈاکٹر صاحب. میں 20 سال وہاں پڑھایا. اسی درمیان مدرسہ امینیہ میں اور مدرسہ مہندیان میں نے شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی. میں نے سوچا کہ یہاں سے چلا گیا ہوں، کم سے کم یہ یادگار کو باقی رکھنا ہے. تو شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ قائم ہو گیا، لیکن اب کوئی سہارا نہیں تھا. کام تو ظاہر بات فقیری کو کرنا تھا. تو اخلاق الرحمان کدوائی صاحب رحمہ اللہ نے میری بڑی مدد کی اور کہا کہ میرے نام لکھ دیجیے، جس حیثیت بھی چاہیں سرپرست کی حیثیت جو چاہیں لکھ دیجیے. وہ میرے خیال سے انتقال تک مجھ سے خوش رہے ہیں. جب بھی میں کوئی کتاب ان کو پیش کرتا تھا
तो कहते थे बड़ी मोटी किताब है, उठाने में बड़ी परेशानी होती है। उन्हीं दिनों मैंने क्या किया कि शाह वलीउल्लाह के जितने अरबी फ़ारसी रसायल थे उनको मजमूए रसायल इमाम शाह वलीउल्लाह के नाम से 10 जिल्दों में मुरतब किया, छप गई है, और 600-700 सफ़े से कोई कम नहीं है। किदवाई साहब को जब मैं देता था तो कहते थे कि ये बड़ी वज़नी किताब है, इसको कई पार्ट में। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर पार्ट में बदलना शुरू कर देंगे तो कम से कम 20-25 हो जाएंगे, इसलिए 600-500 कम रहेंगे। तो शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट में तमाम तर दुश्वारियों और परेशानियों के बावजूद शाह वलीउल्लाह के जितनी अरबी हमात, लमात, सैर फयूजुल हरमैन, हुज्जतुल्लाह बालगाह और न जाने किस तसव्वुफ पर बहुत सा, उनको हमने मजमूए रसायल इमाम शाह वलीउल्लाह के नाम से 10 जिल्दों में, ये काम बहुत थोड़ा। इसका हाल ये है कि पड़ोसी देश भी है हमारे यहाँ छपती है, उसके 2 महीने के बाद वो किताब वहाँ छप जाती है। छप जाती है वो तकरीबन कई मकतबों से वहाँ छप गई है। हमारे पास सब फोटो हैं वहाँ पर। एक काम तो दूसरे काम के सिलसिले में जो मुझे बहुत इत्मीनान है शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हुज्जतुल्लाह बालगाह में बहुत सब रवायतों के बारे में मुख्तलिफ लोगों के ख्याल है कि उसमें ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, ये हैं रवायतें। एक काम मेरे सामने आया, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग हैं, उन्होंने PhD किया है तखरीजुल अहादीस अल वारिदा फ़ी हुज्जतुल्लाह बालगाह। वो तकरीबन 5 जिल्दों में है, बड़े साइज़ के ऊपर। वो शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट ने उसको किया। वो काम ऐसा है जैसे मुस्तशरिकीन करते हैं, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से छपा है। जो उसके अलावा 40-41 किताबें शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट की तरफ से छपी हैं, और ये ज्ञान बापी या पंजाब फला जगह आप देखेंगे उस मतबूआत में से बाज़ किताबें कोर्ट में पेश हैं। अभी यहाँ पर ज्ञान बापी का जिक्र हुआ है तो मुफ्ती अब्दुल माती मुझसे कहते हैं कि आपकी किताब मैंने पेश की है, तो मैंने कहा मेरी किताब मत पेश करो, पता सीता रमैया किताब पेश करो जो सबसे पहले उसके बारे में, और पांडे जी की किताब पेश करो। बहरा हमारी औरंगज़ेब फरामी वाली किताब वहाँ पेश की गई। इसी तरह जो मसाजिद औक़ाफ़ के सिलसिले में है जो शाह वलीउल्लाह इसी छपी हैं, पंजाब में बेशतर मुक़द्दमों के पेश की गई है। तो शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट ने अब तक 41 किताबें, बहुत ही म्यारी किताबें जिनकी बड़ी मुख्तलिफ है, और उसके अलावा शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट ने 13 सेमिनार किए हैं। 11 तो नेशनल सेमिनार और 2 इंटरनेशनल सेमिनार, और इंटरनेशनल सेमिनार भी माशाल्लाह ख़ास मकसद से किया गया, आम तौर पर इस तरह के नहीं किया। मसलन पिछले दिनों हमारे डॉक्टर साहब, मैंने इसीलिए इनको ज़हमत दी है, एक मसला बनाया कि तसव्वुफ़ और गैर तसव्वुफ़। जो तसव्वुफ़ वाले हैं अमन पसंद हैं, और गैर तसव्वुफ़ वाले हैं, एक बहुत मशहूर नाम है वो है। मेरे जहन यहाँ दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, रोज़ा विज्ञान भवन में फला, और यहाँ के सबसे बड़ी अजीम शख्सियत उस सेमिनार आप समझ रहे हैं, वो तसव्वुफ़ पर वो साबित करने की कोशिश की है कि ये गैर तसव्वुफ़ वाले हैं। जितने मारूफ इदारे हैं हिंदुस्तान के वो गैर तसव्वुफ़ वाले हैं, मगर ये है। मैंने मशवरा किया हमारे डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, अल्लाह इनको सेहत दे। मैंने कहा डॉक्टर साहब शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट का पैसा तो है नहीं, और हमारे जो अरकान हैं वो उस सेमिनार में ज़रूर आ जाते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं कैसा सेमिनार होता है। मैंने कहा कि इंटरनेशनल सेमिनार, ताहिरुल कादरी भी आए थे उसमें। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक सेमिनार करना चाहता हूँ लेकिन वो इंटरनेशनल। डॉक्टर साहब अल्लाह का साया तादीर कायम रखे, उन्होंने कहा कि मैं फलां मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को बुलवा दूंगा, और वो आए प्रोफेसर मोहम्मद गजाली साहब।
इसी तरह मेरे जहन में आया कि ईरान से भी कोई आना चाहिए। नैयर आबियात मेरे को जानती थी मैं जब, तो वो बेचारी आ गई। एक रहमत शाह ताजिकिस्तान में था, उसका वलीला पे रिस्पेक्ट किया है, उसको मैंने कहा भाई तुम आ जाओ, तुमको मैं कुछ दे दूंगा किराए का, और वो आ गया। बांग्लादेश से एक साहब आ गए बिन बुलाए, सिर्फ नाम सुनकर। और यहाँ से अफगानिस्तान से आर्या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर हिकमत यार साहब, वो इलाज कराने के लिए आए थे गुड़गांव में। मेरे एक दोस्त थे, उनको यहाँ बुलाकर ICCR में बैठा। 3 रोज़ का प्रोग्राम चला, इतना शानदार प्रोग्राम हुआ। और मैंने कहा कि निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशी को, अहमद मियाँ को पकड़ लिया, मुफ्ती मुकर्रम को लाया, और मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी को मैंने कहा जहमत फरमा लिए मामला है। वो 6 रोज़ा सेमिनार हुआ, और बाहर हिंदुस्तान सब यूनिवर्सिटी के भाई लेक्चरार और फला सब आए। उसमें हम लोगों ने ये कहा कि तसव्वुफ तो दिलों को जोड़ने के लिए आया था, उसको तफरीक बैन मुस्लिमीन का जरिया बनाना अफसोसनाक है। उसका ऐसा मैसेज गया कि पूरे हिंदुस्तान में जो नया फितना उभर रहा था वो तो शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट ने ये कहा। दूसरा अहम काम जिस पर मुझे नाज है, फख्र है, जब हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 58-57 के 150 साला जश्न मनाया गया, किदवाई साहब हरियाणा के गवर्नर थे, वो कभी कभी मुझे वहाँ बुला लेते थे हरियाणा में। कहा क्या कुछ मालूम है क्या होने जा रहा है? मैंने कहा नहीं मालूम। कहने लगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि जश्न आज़ादी के 150 साला जश्न मनाया जाए और मुजाहिद आज़ादी का जिक्र किया जाए उसी पैमाने में। इंस्टीट्यूट क्या करेगा? तो मैंने कहा कि भाई से इंस्टीट्यूट क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है, वो शायद नहीं है हमारे पास। तो कहा नहीं करना है, वो यही कहते थे करना है। तो मैंने कहा ठीक है। वो न मेरी बात काटते थे न मैं उनकी बात करता था, ये तो ज़िंदगी भर ही रहा। तो मैंने कहा ठीक है। एक प्रोग्राम किया हमने उसी उन्वान से 1857 की पहली जंग आज़ादी में मुसलमानों का नहीं, उर्दू अखबारात का हिस्सा, और वो हुए अंसारी ऑडिटोरियम में। डॉक्टर साहब भी तशरीफ लाए थे उसमें, और उसमें आबिदुल्ला गाजी भी आ गए थे, डॉक्टर साहब भी थे, शीला दीक्षित थी, के रहमान थे, हजरत मौलाना अंदर शाह साहब ने उसकी सदारत की थी। वो गोया के 2 रोज़ा सेमिनार बहुत अच्छा, उसकी रिपोर्ट भी छप गई है, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी मुसलमानों के हिस्से। फिर दूसरा सेमिनार उसी पार्ट का हुआ था। किदवाई साहब ने कहा था कि हर जगह होना चाहिए, हर जगह। वो समझते नहीं कैसा किया जाता है, वो तो सिर्फ कहते थे ये होना चाहिए, वही मेरे लिए हौसला था। तो दूसरा सेमिनार हुआ यहाँ पे इंडिया इस्लामिक सेंटर के बड़े वाले हाल में, छोटे वाले हाल में नहीं, इस मजबूरी वाले हाल है, ये मजबूरी वाला। ये पहला मौका है कि मैंने बहुत ही किफ़ायत शायरी, मैंने कहा नुमाइश नहीं है, सिर्फ मैं आपसे दरख्वास्त करने के लिए मैंने आपको ज़रूरत दी। वहाँ अंसारी इंडिया इस्लामिक सेंटर के बड़े हॉल में गया, उसमें अंतुले साहब आए, ये तदीक भाई थे, शीला दीक्षित थी, और उसकी सदारत की थी हजरत मौलाना सालिम कासिम। वो सब रिपोर्ट छप गई उसमें नाम। उसका उन्वान था 1857 की पहली जंग आज़ादी में वलीउल्लाही तहरीक के असरार। वो बहुत अच्छा अंतोले साहब ने कहा कि मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रहा और यहाँ पर मिनिस्टर हूँ, मैंने ऐसा शानदार प्रोग्राम नहीं देखा है। वो खैर थोड़ा सा किदवाई साहब ने कहा कि हरियाणा में होना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब मेरी हिम्मत पस्त हो गई है, कहा नहीं होनी चाहिए। मैंने उल्टा से कहा है वो आए। किदवाई साहब ने कहा कि मैंने कहा कि चंडीगढ़ में करा लीजिए, वहाँ बहुत अच्छा है। शरीफ भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, शरीफ भाई आ जाइए। तो कल यहाँ चलिए बैठिए। मैंने कहा कि चंडीगढ़ में करा लीजिए, सारा इंतजाम हो जाएगा आपके यहाँ से। तो कहा वहाँ मुसलमान ही नहीं है, आप नूर में कीजिए। मैंने कहा ठीक है।
फिर भाई साहब का हुक्म था, मैंने 2 रोज़ा प्रोग्राम का 1857 की जैसे इधर तशरीफ लाई, ये मेरठ से तशरीफ ला रहे हैं, ये शाह वली उल्लाह इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, मेरठ से तशरीफ ला रहे हैं। तो नूह में कीजिए, मैंने कहा नूह में कर दूंगा। नूह में 2 रोज़ा सेमिनार हुआ 1857 की पहली जंग आज़ादी में, हरियाणा का रोल, उसमें हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हुड्डा साहब, कितवाई साहब यहाँ पे आ गए थे दिल्ली, लेकिन उनकी गर्दन में तकलीफ हो गई थी। मुझसे कहा कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, लेकिन तकलीफ है। मैं आप बताइए वहीं आया वो, ये भी अदीब भाई भी उसमें शरीक थे, मौलाना मीदुज़्ज़मा साहब, ऐसे नाम लोग सारा वक्त ही लग जाएगा, अहमद अली कासमी से कोई नहीं था। अरशद मदनी साहब ने मुझसे कहलवाया कि मैं उसमें शरीक रहूँगा, तो अरशद मदनी साहब ने उस जलसे की सदारत की। तो पहला हुआ अंदर शाह साहब ने की, और दूसरा हुआ हज़रत मौलाना सालिम साहब ने किया, और तीसरा हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने सहराई की थी। ये 1857 के 150 साला जश्न के मौके पर शाह वली उल्लाह इंस्टीट्यूट वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसने गोया के 150 साला जश्न में नुमाया तौर पर हिस्सा लिया। गवर्नमेंट ने जो किया, मेरठ से एक जुलूस निकला था, लाख किला आया था, और बहादुर शाह जफर को एक मखसूस हैत में दिखाया गया था, उसके अलावा नहीं किया। तो शाह वली उल्लाह इंस्टीट्यूट ने मुख्तलिफ महाजों पर जो सेमिनार किए हैं वो बामकसद सेमिनार हुआ है, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिखी गई हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी छपती हैं और यहाँ से पहले वहाँ भी छप जाती है। ये तो मुझे इत्मीनान है। शाह वली उल्लाह इंस्टीट्यूट ने 2-4 अवार्ड दिए हैं अब तक। कितवाई साहब ने कहा अवार्ड भी देना चाहिए, मैंने कहा अवार्ड लेने वाली शख्सियत भी तो होनी चाहिए, तो कहा कि नहीं मिल जाएंगी। तो उनकी तहरीक पर ये अवार्ड का सिलसिला शुरू। अब मेरे लिए परेशानी, मैं तो अवार्ड को बेच नहीं सकता, न मेरी ज़मीर इजाज़त देता मैं अवार्ड बेच नहीं लूँ। मैंने कहा नहीं, पहला अवार्ड मैंने सोचा किससे, हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब को दिया गया, क्योंकि उन्होंने तफसीर पर काम किया था। फिर सोचा कि किसको दिया जाए, तो दूसरा अवार्ड मौलाना अखलाक हुसैन कासमी, इनके वालिद को दिया गया, और उन्होंने महासिर मूज़ह कुरान पर जितना अहम काम किया है, बर सगीर में इतना काम नहीं हुआ है, उनको दिया। और मौलाना फ़कीउद्दीन साहब को दिया गया। मौलाना फ़कीउद्दीन साहब को दिल्ली वाले नहीं जानते हैं। 47 के बाद उनके कमरे में, शरीफ भाई आप तो जानते हैं, इतनी चाबियाँ थी शरीफ भाई, और वो इतने कलंदर आदमी थे कि एक कमरे में, छोटा सा कमरा है जिसमें हम लोग जाते थे चाय पीने में, तो गिर जाता था जिसम पर। अपना मकान नहीं लिया शरीफ भाई, गली हुसामुद्दीन मौलाना फ़कीउद्दीन आप तो जानते हैं, उनको अवार्ड दिया गया। और फिर मैंने सोचा और किसको, एक मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबाद के, मैं जानता नहीं, मेरे कई दोस्तों का, उनको दे दिए, बहुत सूफ़ी हैं, ये है, मैंने कहा दे दिए। तो अब तक सिर्फ 4-5 अवार्ड ही दिए गए हैं, इसलिए कि अवार्ड उसको दिया जो शाह वली उल्लाह पर तो कुछ काम किया हो, तो 4 अवार्ड 5 अवार्ड के इसका। ये जब काम है, इसमें आप अभी इसका इजरा भी होगा, आप देखेंगे कि मुफ्ती अतीकुर रहमान, मौलाना अली मियाँ साहब, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, हकीम उज़्ज़मा साहब, खलीक अंजुम, प्रोफेसर खलीक निज़ामी, प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, मौलाना पारिक साहब ने मेरे बारे में क्या कहा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। सब मैंने नोट किया, एक एक चीज़ नोट की। अब मसला ये है कि शाह वली उल्लाह इंस्टीट्यूट ने 41 किताबें और 13-14 नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार किया है, जिसमें हिंदुस्तान के कोई भी अजीम शख्सियत नहीं हो जो किसी न किसी उन्वान में इसमें मौजूद। सब फोटोग्राफ्स मैंने शाये किए हैं ताकि कोई मुझे मुत्तहम न करे कि आपने फर्जी बातें की है। सब तकरीबन इस किताब को मुरतब करने में मैंने 1 साल से ज़्यादा वक्त लगाया। इसमें 2-3-4 किताबें और लिख देता, इसलिए ताकि कोई एतराज़ न करे। अब एक मसला ये है डॉक्टर साहब जो मुझे बुलाया इसलिए आप लोग को, कि जब ये मजमूए रसायल के 10 चीज़ें छप गई, हाथों में गई,
तो शाह वलीउल्लाह के अरबी फ़ारसी किताबों को समझना तो फ़ारसी वालों का काम नहीं है। शरीफ भाई, आप तो फ़ारसी रोज़ाना चाय पीने जाते हैं ईरान में सुबह में, बहुत मुश्किल ज़ुबान है। तफ़हीमात इलाहिया का कहीं तर्जुमा नहीं हुआ था बर्र सगीर में। जब अनवर शाह कश्मीरी ढाबेल में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने तफ़हीमात इलाहिया को शाये किया था। बड़ी मुश्किल से चंद लोगों ने मिलकर तफ़हीमात इलाहिया का दोनों जिल्द का तर्जुमा किया। ये बड़ा मुश्किल काम था। अल्लाह बाद में उनके इंतकाल भी हो गया अपने। ये काम, ये बहुत ओरिजिनल काम है। अब शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट के जब रसायल दूसरे के हाथों में पहुँचे तो पढ़ते हैं, कहते हैं कि इस्तिलाह का माने क्या है, ये क्या माने है। इसलिए कि शाह वलीउल्लाह की किताबों को समझने के लिए उनकी इस्तिलाहात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ से मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े मुहक्किक़ हैं जिन्होंने शाह वलीउल्लाह की किताब का तर्जुमा किया और इस्तिलाह का तर्जुमा कर दिया। शाह वलीउल्लाह का अंदाज़ अजीब व गरीब है। चूँकि मैंने सारी किताबों को मैंने पढ़ा है, एक बार नहीं कम से कम 10-10 बार। शाह वलीउल्लाह यहाँ पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तशरीह करेंगे और उस इस्तिलाह को दूसरी किताब में पेश करेंगे बगैर तशरीह किए हुए। जब तक उनकी इस किताब पर उनकी किसी की निगाह न हो, उस इस्तिलाह का माने वहाँ समझ नहीं पाएगा। अब मुझे लोग ख़त लिखते हैं कि मौलाना अब आप उनके मुस्तलाहात पर भी काम कर दीजिए। मैंने कहा मेरी सेहत नहीं, मैं तनहा किया हूँ, इसमें किसी का कोई ताउन नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ भाई, मैं सब कुछ कर शायद कंपोजिंग करने वाले का मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। तो अब मुस्तलहात पर फिर कुछ अहबाब ऐसे हैं बाद यूनिवर्सिटियों में, वो कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह की किताबों में कुछ बातें इल्हाक़ी हैं, इल्हाक़ी। मसलन तफ़हीमात इलाहिया है, जहाँ अजमेर की मुखालफत हुई है, अजमेर में जाने वालों की मज़म्मत शाह साहब ने की है, तो लोग कहते हैं कि तो इल्हाक़ी इबारत है। मैंने एक प्रोफेसर से मैंने कहा कि देखो हमारी अमानत दयानत पर तुम शुबह कर सकते हो, लेकिन अनवर शाह और मौलाना शब्बीर बिन्नौरी और यूसुफ बन्नौरी और शबीर उस्मानी की अमानत दमानत पर शुबह नहीं कर सकते हो। वो जो मखतूतात थे उसके मुताबिक। तो अब मैं इससे एक अंदाज़ा है कि शाह वलीउल्लाह के जितनी अरबी फ़ारसी किताबें हैं उनको जदीद तदवीन की सख्त ज़रूरत है। ये काम है ताकि मखतूतात से मुआज़ना करके उनकी किताबों को सही अंदाज में पेश किया जा सके कि शाह वलीउल्लाह की ये किताब है। तो तदवीन का काम, तदवीन काम और इस्तिलाहात पर काम बहुत ज़रूरी है। यानी अब है, ये काम तो हो चुके हैं 41 और ये है अब इसका मसला सबसे ये है, ये बैठे हुए हैं फैज़ी वज़ीर हाशिम मेरे भाई हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया, ज़िक्र रहमान भाई बहुत साथ दिया। किदवाई साहब, मैंने एक किताब है नुकूश खातिर आई है मेरी अभी यहाँ पर है, 2 आदमी का मैंने, किदवाई साहब इन्होंने, वो तो अपने अंदाज से ही है। जब ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO हो गए तो मैं तो कहा नहीं इनसे कि मेरे लिए काका नगर के हुजरा मुख्तस कर दीजिए, किराएदारी कर दीजिए, मैंने नहीं कहा। इत्तफाक से ये चल चलाव का वक्त था, मौलाना जुनैद बनारसी साहब को लेकर मैं गया। मैंने उनसे भी नहीं कहा था कि आप फैज़ी वज़ीर हाशमी साहब से कहिए कि मेरे औकार के ख़िलाफ़ है कि मेरे नाम ये छोटा सा कमरा अलाट कर दें। मौलाना जुनैद बनारसी साहब बोलते रहते थे, डॉक्टर साहब जानते हैं, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब बस में आते हैं, पनाह में आते हैं और अब तक शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट का कोई दफ्तर नहीं है। तो फैज़ी भाई एकदम मूड में आया, क्यों नहीं दफ्तर होगा, कहाँ पे मैं ऐलान कर दी। CEO थे मतीन साहब चौधरी थे, शीला तो बड़े इनके करम फरमा थी, मैं कर। तो उन्होंने झटपट जाते 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 उन्होंने काका नगर का एक ऐसा हुजरा दिया है जिसमें अगर इंतकाल हो तो मुश्किल से कोई दफन हो पाएगा। 1-2 का बस, 3-4 आदमी बैठता। शरीफ भाई गए हैं, मैंने इसीलिए दिखाया हूँ आपको, वरना मैं आपको नहीं ले जाता। शरीफ भाई ये किताब चाहे आप तो बहुत मकबूल है ईरान में, शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट का नाम भी थोड़ा ईरान, अफ़गानिस्तान, फला में जानने लगे हैं शाह वलीउल्लाह के हवाले। अफ़गानिस्तान से कई लोगों का फ़ोन आया कि हम शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट को देखना चाहते हैं। एक बाहर का यानी हर मुल्क से
महीना 2 महीना 4 महीने के बाद फ़ोन आता है कि हम शाह वलीउल्लाह के इंस्टीट्यूट के देखना चाहते हैं, और बाद में आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप आ जाइए। मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं उस हुजरे को दिखाकर अपनी इज्जत को क्यों खराब करूँ, मैं टालता रहता हूँ। एक छोटा है, चूँकि शाह वलीउल्लाह इंटरनेशनल आदमी, मैं उन पर कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। शाह वलीउल्लाह इंटरनेशनल आदमी, सब लोग जानते हैं। और शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट ने अब तक जो कुछ किया है, इससे थोड़ा सा छोटे छोटे मुल्कों में जानने लगे हैं। मैं दरख्वास्त है कि मुझे अगर मेरे लिए कुछ गुंजाइश हो जाए कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर 2-4 आदमी बैठ हम कर सकें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, जिसके मुझे बज़ाहिर तवक्को नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस किताब का इजरा हो जाए, होगा, इसीलिए डॉक्टर साहब जाने 2-3 बोल कर जाएंगे। बहुत अच्छा। और इसको लाओ, कहाँ है ये 25 साल अरे भाई फिर सबको सब कर लें। आज बाद में देख लीजिए ना, आप कैसे करेंगे। उड़ जाएगा साहब, मुझे लगा भी करता है बराही। हाँ मैं अभी अब तो इसमें सब कुछ है, मैंने जल्दी इब्राहिम भी लगा 15 साल से पाबंद जी। फोटो ऐसा अच्छा है कि अगर यूं खड़े हो जाए हम लोग। हाँ अच्छा, ऐसा हाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा क्या?